Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we will start our chapter number 7, the atmosphere. Page number 42, chapter number 7, and the name of the chapter is the atmosphere. The atmosphere is the layer of gases that surrounds the earth's surface. So what is atmosphere? Atmosphere is a mixture of different gases which is all around us. हमारे चारों तरफ मुख्तलिफ गैस मौजूद हैं जिन्होंने पूरे तरीके से हमें अपने अंदर घेरा हुआ है और हम उसके अंदर रहते हैं. यही एटमॉस्फेयर है. It is just like wrapping paper around a precious gift or parcel because it protects the earth from excessive radiation, the harmful effects of the sun, strong rays, falling meteors and debris from outer space. Now this atmosphere plays a very important role to protect us or in protecting us. How? Just like that, when we have an expensive gift, we wrapped it with such things which protect this expensive thing from any kind of destruction, and this atmosphere is protecting us from the harmful rays of the sun and the meteors and the debris from the outer space. जिस तरह एक कीमती तोहफे को संभालने के लिए या कोई शीशे के सामान को प्रोटेक्ट करने के लिए चारों तरफ से थर्माकोल लगाते हैं, उसके ऊपर एक गत्ते का डब्बा लगाते हैं ताकि वो महफूज हो जाए टूटने फूटने से. इसी तरह से ये एटमॉस्फेयर जो है वो हमें बचा के रखता है सूरज की उन ख़तरनाक रेस से जो हमारे लिए नुकसानदेह हैं, और ऊपर आसमानों पर जो बड़े बड़े पत्थर के गोले जिन्हें मेटेरियल्स कहते हैं हम, तो जिसे मेटेरियल्स कहते हैं हम, वो कभी कभी जब टूट कर ज़मीन की तरफ आने लग जाते हैं तो उससे हमें ये प्रोटेक्ट करता है एटमॉस्फेयर. इट इज़ पैक्ड विद गैसेस दैट आर एसेंशियल फॉर लाइफ ऑन अर्थ. नेक्स्ट थिंग, this is very important gases which is needed by all the living things on the earth. इन गैसों में, इन एटमॉस्फेयर में वो तमाम गैसेस मौजूद हैं जिसकी हमें ज़िंदा रहने के लिए या पौधों को ज़िंदा रहने के लिए या दूसरे जानवरों को ज़िंदा रहने के लिए बेइंतहा ज़रूरत है. द एटमॉस्फेयर इज़ ऑल्सो द अर्थ सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर. Now atmosphere is also reason for bringing fresh water, or it's a source of fresh water. यानी एटमॉस्फेयर ही वजह है जिससे हमें मीठा पानी मिल रहा है. आगे चलकर आपको पता चलेगा कि ये सारा कुछ किस तरह हो रहा है. डिफरेंट प्रोसेस इन द एटमॉस्फेयर जनरेट द वेदर अराउंड द ग्लोब. मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार हैं, मुख्तलिफ़ प्रोसेस हैं एटमॉस्फेयर में जो कि ज़मीन के ऊपर तरह तरह के मौसम लेकर आते हैं, जिनकी वजह से हमें तरह तरह के मौसम देखने को मिलते हैं. यानी सर्दी, गर्मी, बरसात, ख़िज़ां, बहार, ये सब कुछ इस एटमॉस्फेयर की वजह से मुमकिन होता है. नाउ वी कम टू द सेकंड पैराग्राफ, that is composition. Composition of what? Composition of different gases in the atmosphere.
The atmosphere is composed of nitrogen 78%, oxygen 21%, and traces of carbon dioxide, argon, and other gases. So atmosphere is composed of nitrogen, oxygen, carbon dioxide, dust particles, water vapors and many more. तो बहुत सारी चीज़ों से मिलकर ये हमारी फ़िज़ा बनी है, हमारा एटमॉस्फेयर बना है, जिसमें नाइट्रोजन की तादाद सबसे ज़्यादा है 78%, ऑक्सीजन दूसरे नंबर पे 21%, और फिर बाकी तमाम गैसें और कार्बन डाइऑक्साइड और मिट्टी के बारीक ज़र्रात और पानी के बारीक ज़र्रात मौजूद हैं. Though these traces gases make up hardly 1% of the atmosphere, they contribute to atmospheric pressure process which are very important for life on earth. Although the other gases which are in very little quantity, but still they contribute the atmosphere different processes which is continuously happening on the earth. हालांकि ये थोड़े से दूसरी गैसें हमें लगता है कि बहुत थोड़ी थोड़ी सी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये किसी ना किसी तरह ज़मीन पर मुख्तलिफ़ किस्म की तब्दीलियों की वजह बन रही हैं. Of these, carbon dioxide, water vapor and ozone are especially significant. Now all those gases, what are very important? Carbon dioxide, water vapor and ozone. They are very, very important for us. Water vapor is unevenly distributed over the globe, almost non-existent over deserts and abundant over ocean. In the atmosphere, water vapor is found in all its states: solid, liquid, gas. Now, first of all, we talk about water vapors. Now, water vapor is not equally distributed. Somewhere they are a lot and somewhere they are very, very little. For example, at deserts area, they are in very little quantity, means water vapor is very rare, and the places which are near oceans, they are a lot. तो पानी के बारीक बारीक जो ज़र्रात हैं वो दुनिया में मुख्तलिफ़ तरीके से फैले हुए हैं, मतलब एक बराबर नहीं है सब जगह. अगर आप समुद्र के किनारे जाते हैं तो नमी बहुत बढ़ जाती है, अगर आप रेगिस्तानों में चले जाते हैं तो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है. इन द एटमॉस्फेयर वाटर वेपर इज़ फाउंड इन ऑल स्टेट्स: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. पानी अपनी तीनों हालतों में दुनिया में मौजूद है, यानी ये आपको बर्फ़ की शक्ल में भी मिलेगा, पानी की शक्ल में भी मिलेगा और गैस की शक्ल में भी मिलेगा. It observes the heat reflected from the earth, which affects the weather in the form of clouds. Water vapor also stops some radiation from reaching the earth. Now, what is the function of these water vapors? First of all, they make cloud. कितने important है हमारे लिए ये बादल, और ये वाटर वेपर से बनते हैं. दूसरा, ज़मीन की तरफ बहुत सारी ऐसी ख़तरनाक रेडिएशन है जिनको ये वाटर वेपर्स रोक लेते हैं. Now we come to the page number 43, and this is starting from the heading structure. Now we talked about the structure of the atmosphere. कैसा है हमारा एटमॉस्फेयर, इसकी कितनी लेयर्स हैं, कौन कौन सी लेयर कहाँ तक है, ये सारी चीज़ें अब हम इसमें पढ़ेंगे. Now, structure. The atmosphere consists of 4 basic layers: troposphere, stratosphere, mesosphere and thermosphere. Now, there are 4 distinct layers of atmosphere जिनके नाम हैं troposphere, stratosphere, mesosphere and thermosphere. Now, one by one we will read about these layers.
Number one is troposphere. The troposphere is the first layer of Earth and it closest to the Earth surface. सबसे पहली लेयर कौन सी है? ट्रोपोस्फियर। और ये ज़मीन की सबसे करीब तरीन है। इट इज़ अराउंड 8 किलोमीटर थिक। तो कहाँ तक है ये? इट इज़ अराउंड 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फियर जो है वो मौजूद है। मोस्ट ऑफ द वेदर चेंजेस टेक प्लेस विद इन द ट्रोपोस्फियर। सो मोस्ट ऑफ द चेंजेस इन वेदर कम्स फ्रॉम दिस लेयर। इसी लेयर में मुख्तलिफ़ किस्म की मौसमों की तब्दीली होती है, या यही लेयर जो है इन तब्दीलियों की वजह है। क्लाउड्स आर फॉर्म्ड एंड फाउंड इन द ट्रोपोस्फियर and aeroplane flies in this zone. As you travel higher in the troposphere, you experience a drop in air pressure and temperature. Clouds are formed in troposphere. यानी बादल कहाँ बनते हैं? ट्रोपोस्फियर में बनते हैं। जहाज़ कहाँ उड़ते हैं? इसी जोन में उड़ते हैं, ट्रोपोस्फियर में। अगर आप इससे ऊपर जाओगे ना तो फिर क्या होगा कि आपको प्रेशर और टेम्परेचर में चेंजेस मिलेंगे। तो मतलब इस लेयर के अंदर रहने का जो है वो से आपका टेम्परेचर और प्रेशर, एयर प्रेशर मुनासिब रहेगा। नाउ वी कम टू द सेकेंड लेयर, दैट इज़ स्ट्रेटोस्फियर। द स्ट्रेटोस्फियर इज़ डायरेक्टली अबव द ट्रोपोस्फियर एंड अबाउट 35 किलोमीटर थिक। अब ये स्ट्रेटोस्फियर जो है वो ट्रोपोस्फियर के फ़ौरन बाद स्टार्ट होती है। एंड हाउ मच इज़ इट इज़ थिक? 35 किलोमीटर थिक, यानी उससे बहुत ज़्यादा दूर तक है, 35 किलोमीटर थिक है। दिस इज़ द ओनली लेयर इन विच द टेम्परेचर राइजेस एज यू गो हायर। And what is the significance of this layer? That when you will go up high on this layer, the temperature will rise, increase. यानी जैसे जैसे इस लेयर में आप ऊपर जाओगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। This is because the thin ozone layer present in the stratosphere observe the sun's harmful rays, which raises the temperature around it. What is the reason? The reason is that ozone layer is present above it. और ओजोन लेयर का काम क्या है? ओजोन लेयर का काम है सारी ख़तरनाक रेस को सूरज की रोक के रखना। तो जाहिर बात है उसकी वजह से वो हीटअप तो होगी, गर्म होगी, इसी वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है इसके इर्द गिर्द। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग पेज नंबर 44, that is about mesosphere. The mesosphere is the cold layer above the stratosphere and it is about 50 to 80 kilometer above the earth's surface and gets colder as you move upward. The mesosphere is a cold layer. mesosphere जो है क्या है? वो एक ठंडी लेयर है और स्ट्रेटोस्फीयर से ऊपर है और ये 50 to 80 किलोमीटर ज़मीन से ऊंची है, अबव द अर्थ सरफेस। और जैसे जैसे आप इसके ऊपर जाते जाएंगे क्या होगा? और ठंडक होती जाएगी। मोस्ट मेटीरियल्स बर्न अप इन दिस लेयर एज दे एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर। द मेसोस्फीयर इज़ यूनिक, अ कोल्ड लेयर सैंडविच बिटवीन टू हॉट लेयर्स। अब ये मेसोस्फीयर जो है वो इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज मोस्ट ऑफ द मेटीरियल्स दैट बिग बर्निंग rocks when enter into the earth it cool down in this layer and the mesosphere is a unique cold layer which sandwich between the two hot layers। एक चीज़ कितनी हैरत की बात है
कि अल्लाह ताला का आप इसमें सिस्टम देखें कि दो जो हैं वो गरम लेयर्स के बीच में अल्लाह ताला ने ये एक लेयर रखी है जो कि ठंडी है और बहुत ठंडी है। तो ये इसमें आप देखें अल्लाह की कुदरत का अंदाज़ा होता है आपको। नाउ वी कम टू द थर्मोस्फीयर। द थर्मोस्फीयर इज़ द हॉटेस्ट ऑफ द लेयर, सबसे ज़्यादा गर्म लेयर, सबसे ज़्यादा हॉट। Extraordinary amount of sunlight reaches this layer, which is about 80 km above the Earth's surface. Beyond this layer is outer space. So this is the last layer. If you will cross this layer, you will be on the space. This is extraordinary amount of sunlight reaches to this layer. That's why it's very very hot. 80 km above the Earth's surface, and beyond this, the space. तो 80 किलोमीटर तक ज़मीन से ऊपर ये लेयर है, बहुत गर्म है। इसको जब हम क्रॉस कर लेते हैं तो फिर हम ज़मीन की सारी लेयर्स को क्रॉस करते हुए खला में पहुंच जाते हैं, यानी आउटर स्पेस में पहुंच जाते हैं। गॉट इट? तो आज का लेक्चर ये यहाँ तक रखते हैं, ठीक है। चैप्टर बड़ा है, बहुत सारी नई नई बातें इसके अंदर, बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए। तो कोई क्वेश्चन आंसर्स हैं, कुछ बात